Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 27th lecture of Linear Algebra. Last lectures में we have introduced very important concepts related to the matrix, a given matrix, and we have studied what are the eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues और eigenvectors जो हैं ये हमने स्टडी किए थे कि अगर given matrix हो, how to determine the eigenvalues, eigenvectors and basis for the eigenspace. What we call or what do we mean by the algebraic multiplicity of eigenvalues and algebraic geometric multiplicity of eigenvectors. ये मैंने आपको बताया था algebraic multiplicity जो थी वो आइगन वैल्यू एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू जो है जितनी बार रिपीट होती थी आपके करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में एज अ रूट उसको हम कहते थे कि ये algebraic multiplicity है और geometric multiplicity is the dimension of your eigenspace corresponding to each eigenvalue. Then we have studied the diagonalization process of a given matrix. Whenever we have learned two very important theorems which states that whenever a given matrix is diagonalizable, अगर diagonalizable है तो वो diagonalizable किस तरह किया जा सकता है इसको भी हमने स्टडी किया था and in fact one of the statement was that the dimension if a square matrix A n cross n is diagonalizable if the dimensions of the eigenspaces of that matrix equals the number of columns n के equal है अगर square matrix है of course n cross n उसमें number of rows और number of columns जो है वो equal है. Diagonalizable process जो है ये हमने देखा था कि इसको if a matrix is a diagonalizable then computations जो है वो काफ़ी easy हो जाती हैं. At the end जो हमने last lecture में किया था वो eigenvectors, eigenvalues and its relations to the linear transformations जो है वो हमने स्टडी किया था. linear transformations आपको याद होगा कि linear transformation ऐसा फंक्शन है, ऐसा मैपिंग है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है which satisfies the two conditions. वो दो conditions जो है वो आपको पता है कि if we take the two different vectors from the domain and take their sum then take the image, then the image is equals image of the sum of two vectors in the domain equals the image of one vector plus the image of second vector in the codomain. Similarly for a scalar C and a vector u belongs to domain of the transformation or function, t of the image of t cu equals c times tu in the codomain. एक रिलेशनशिप जो है वो आपका डोमेन में हो रहा है और उसका इमेज हम देख रहे हैं और दूसरा आपका you are having the images of the vectors and then you are multiplying or scaling with the real number or adding the two images from the elements of the codomain which are the images of some elements in the domain. ये linear transformation की हमने और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी की थी. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई हैव गिवन सम ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम. आई होप यू हैव डन बोथ ऑफ दीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम. इनफैक्ट दो ही प्रॉब्लम थे जिनके तीन तीन पार्ट्स थे जिसमें वन पार्ट जो था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन साबित करना भी था. आज के लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट जो है इनर प्रोडक्ट. इनफैक्ट अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है यू आर फेमिलियर विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर्स दिए गए हों किस तरह हम जो है न्यू वेक्टर्स फॉर्म करते हैं ये दो ही वे हैं. और द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स कैन बी मेड बाय टू वेज, द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट. आज लीनियर अलजेब्रा में वी विल से द सेम थिंग. जो भी मैंने तीनों चीजें बोली हैं स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट, दीज आर द सेम थिंग्स. आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना और हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं स्पेसिस की यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट्स और डॉट प्रोडक्ट जो है टू वेक्टर्स का वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. उनकी प्रॉपर्टीज को जो है हम स्टडी करेंगे लेकिन इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ लीनियर अलजेब्रा. इसी तरह दो वेक्टर्स कोई से दिए गए हों तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट से भी एक नया वेक्टर आता है. डॉट प्रोडक्ट से यू गॉट अ रियल नंबर. So dot product could be considered as a function which takes two vector and assign a real number to that
two vectors, given two vectors. These two vectors could be identical, these two vectors could be different. So let's start our lecture. As usual, I will give you or provide you solution of previous practice problems. Today we are having the 27th lecture of linear algebra, and the question which I pick is this one. If T is a transformation from P3 जो कि एक वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन 4 होती है, to R4, इसकी भी डायमेंशन R4 होती है, because the basis, standard basis of R4 and standard basis of P3 contains 4 elements. So in fact P3 is isomorphic to R4. That maps a polynomial Pt. So T is a transformation from P3 to R4. Now if we take one polynomial of P3, then the output is given by this matrix, which means it is equal P minus 2, that polynomial evaluated when T equals minus 2, P equals 3, that polynomial evaluated when P equals 3, P equals 1 and P 0. So the first problem is find the image of Pt where 2t minus t square plus t cube. So the image of T, 2t minus t square plus t cube will be P of minus 2. It means the first element will be minus 2 minus minus 2 square plus minus 2 cube. So this will be my first element. The second element, P3. It means P3 minus 3 square plus 3 cube. P1 means 2 into 1 minus 1 square plus 1 cube. And P0 means we put 0 in this expression, which is 2 into 0 minus 0 square plus 0 cube. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, that is the image under the transformation T. अब ये क्या बनेगा, that will be minus 4 plus 4 minus 8, 6 minus 9 plus 27, 2 minus 1 plus 1 and 0. So the image of 2t minus t square plus t cube is minus 8, and here we will have minus 3, 24, here we will have 2 and 0. This is the image under this transformation T, which is defined by this one. Show that T is a linear transformation. Linear transformation, आज के लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया, we have to check U and V, two vectors belong to domain which is P3, should be equals T of U plus T of V. ठीक है, इसको आप चेक करेंगे, ये जस्ट आपको रिकॉल भी हो सकता है. सो टेक U इक्वल्स A0 प्लस A1t प्लस A2t square plus A3t cube and V equals B0 plus B1t plus B2t square plus B3t cube. Then U plus V equals A0 plus B0. देखें यहाँ पे ये बात नोटिस करें कि I am not taking particular polynomials of P3. A0, A1, A2, A3 and B0, B1, B2, B3 are any real numbers. So it could be any polynomial, any element of P3. This is the way of proving
a mathematical statement. Plus a1 plus b1 t plus a2 plus b2 t square plus a3 plus b3 t cube. So the image of t u plus v under the transformation is a naught plus b naught minus 2 a1 minus 2 b1 and plus 4 a2 plus 4 b2 and in the end minus 8 into a cube plus b cube. Similarly, I will have here a naught plus b naught plus 3a1 plus 3b1 and actually I have to just put 3 where I have this t. So I will have here plus 9 a2 plus 9 b2 plus 27 a3 plus 27 b3. Similarly p1 and for 1 I have a naught plus b naught plus a1 plus a2 plus a1 b1, here I will have a b1 and a2 plus b2 plus a3 plus b3 and in the end I will have a naught plus b naught. This vector which is written here can be written as a naught minus 2a1 plus 4a2 minus 8a3 a naught plus 3a1 plus 9a2 plus 27a3 and a naught plus a1. एक्चुअली मैं इमेज ऑफ टी यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये साबित करना है ये जो है. सो आई एम सेपरेटिंग a naught and b naughts, b's terms and a's terms plus a2 plus a3 and a naught. Similarly here I will have exactly the same matrix but with b naught. b naught minus 2 times b1 plus 4 times b2 minus 8 times b3 so on. b naught plus 3 b1 plus 9 b2 plus 27 b3 b naught plus b1 plus b2 plus b3 and b naught. अब ये दो वेक्टर्स जो हैं ये इनफैक्ट क्या है? This vector is p of minus 2 whenever p is this one u of, आप मैंने u नाम रखा हुआ ये u of minus 2 है ये u of 3 है ये u of 1 है और ये u of 0 है plus this one is v of minus 2 v of 3 v of 1 and v of 0. So by definition of the transformation this is t of u and this is t of v. So first condition is satisfied, second you will check yourself. So this will be a linear transformation. ठीक है. Important point ये है कि यहाँ पे मैंने कोई particular लेके नहीं किया. Students mostly क्या करते हैं, कोई particular polynomial ले लेते हैं और उसके लिए show कर देते हैं कि this is a linear, this property holds. लेकिन ये properties जो है ये for all u and v belongs to P3 है.
फॉर ऑल u एंड v बिलोंग्स टू P3 जब भी होगा तो हम आर्बिट्रेरी, क्योंकि जब भी फॉर ऑल u होता है, हम पिछले लेक्चर्स में भी करते हैं, हम वी टेक द आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम द स्पेस, वट एवर द स्पेस इज, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, फाइंड द मैट्रिक्स फॉर t relative to the bases 1 t t square t cube and the standard basis of R4। स्टैंडर्ड बेसिस R4 की आपको पता है कि वो क्या होती है, B equals E1 E2 E3 and E4। अब E1 क्या है, ये भी आपको कई बार लेक्चर्स में लीनियर अलजेब्रा के मैंने आपको बताया, E1 equals the first column of the identity matrix of order 4 1 0 0 0, ये E1। E2 क्या है, E2 equals 0 1 0 0, ठीक है, so on and so forth। so इस बेसिस के और इस बेसिस के दरमियान relative matrix T जो है वो आपने डिटरमिन करना है, and we have done such type of example in the previous lecture, so I am leaving this as an exercise for you and you have to do it yourself। so आज के लेक्चर में हम, जैसे मैंने आपको बताया था, we are going to define the inner product। in fact inner product, dot product or the scalar product, these are the same things। scalar product, these are the same thing, inner product। if u and v are vectors in Rn, हमेशा हम Rn से start करते हैं and then we generalize to the general space, vector space, और उसको जनरलाइज कर देते हैं आइडिया को। देन वी रिगार्ड u and v as n cross 1 matrices। yes, we know that the transpose ut is a 1 into n matrix and the matrix product ut into u is possible। पॉसिबल होगी ना, इसके नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर 1 into n है, इसका n into 1, तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गई। then the matrix product UTV is a 1 cross 1 matrix which is a real number, जो कि एक रियल नंबर होता है। 1 cross 1 matrix, 1 रो और 1 कॉलम मैट्रिक्स को हमेशा रियल नंबर कहते हैं, which we write as a single real number or a scalar without brackets। the number UTV is called the inner product of u and v and often it is written u dot v, u dot v। if u is this one and v is this one, then u dot v जो है उसको किस तरह लिखते हैं हम, u का ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे u dot v will become u1, so on, u1 ट्रांसपोज लेने से ये बन गया into v1 v2 up to so on vn। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, and get the expression of u dot v। it is in fact u1 v1 plus u2 v2 plus so on un vn। so this is the expression। from now on what we call this expression will be called u dot v, the dot product or inner product, जो कि लीनियर अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी है, inner product। let's have some example। compute u dot v and v dot u for u and v where u is given this one। so by definition u dot v will be u transpose into v and u transpose is 2 minus 5 minus 1 into 3 2 minus 3। so that will be 2 into 3 plus minus 5 into 2 plus minus 1 into minus 3 and that will be 3 2s are 6 minus 10 plus 3 that will be minus 1। now v dot u will be 3 2 minus 3 and 2 minus 5 minus 1 by definition, that will be 3 into 2 plus
2 into minus 5 plus minus 3 into minus 1, which is once again minus 1. So from this equation, from this example, we are having this expression that u dot v equals v dot u. Is this true for all vectors u and v? Yes, it is, because dot product is commutative. फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये पहले से पढ़ी होगी. यू आर, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. लेकिन लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में हम इस डॉट प्रोडक्ट का क्या नाम ले रहे हैं? इनर प्रोडक्ट. इसको हम कह रहे हैं दिस इज एन इनर प्रोडक्ट. अब फिजिक्स में जो आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जांपल u डॉट u जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है. एंड इफ u डॉट u जो है वो 0 implies if and only if u equals 0 होता है. ठीक है. सिमिलरली u प्लस vo ये वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है. डॉट w इक्वल्स u डॉट w प्लस v डॉट w होता है. ये प्रॉपर्टीज आपने फिजिक्स में कभी पढ़ी होंगी. ठीक है. तो आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू. थ्योरम है, स्टेटमेंट है, रिजल्ट है. Let u, v and w be vectors in Rn and let c be a scalar. Scalar means c belongs to real number. Then u dot v equals u dot v. That is, if we change the order, that is commutative law holds. Commutative law. This law, the dot product distributes over addition, that you have v plus u dot w is the same as v dot w plus u dot w. Scalar multiplication law, c is any real number, c belongs to real number. cu dot v is the same as u dot cv is the same as c v dot u. u dot u greater than or equal to 0 and u dot u equals 0 if and only if u equals 0. ठीक है जी. तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं, 4 प्रॉपर्टीज, यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज 4 प्रॉपर्टीज, बट इन द टर्मिनोलॉजी एंड लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वेक्टर्स की लैंग्वेज में आप डॉट प्रोडक्ट की लैंग्वेज में ऑलरेडी फेमिलियर हैं इस टर्मिनोलॉजी से. द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ये भी कोई नई बात नहीं है. आपने लेंथ ऑफ अ वेक्टर जो है वो निकालना, मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा हुआ है. द लेंथ और नॉर्म, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में हम इसको लेंथ भी कहेंगे और नॉर्म भी कहेंगे. Norm of v is the non-negative scalar v defined by this one. ये खास नोशन है जो कि आपके लिए शायद फर्स्ट टाइम हो. अब ये आप यू आर फेमिलियर विद मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर लाइक दिस वन. ठीक है. मैथमेटिक्स में ये जो है हम डिटर्मिनेंट्स के लिए भी यूज करते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, रियल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी यही नोशन यूज करते हैं. सो नॉर्म या लेंथ ऑफ अ वेक्टर के लिए हम मैथमेटिक्स में इस तरह की नोशन, डबल बार्स जो हैं वो यूज करते हैं वेक्टर्स के दोनों तरफ. विच इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ v विद इटसेल्फ. ये आपके लिए नई बात नहीं है. अगर आपके पास v बिलोंग्स टू Rn हो, इट मीन्स v इक्वल्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn हो, देन v डॉट v इक्वल्स v1 स्क्वायर. ये आपका v डॉट v का एक्सप्रेशन बन रहा है. ठीक है. v डॉट v विल बी इक्वल्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn मल्टीप्लाइड बाय v1 v2 अप टू सो ऑन vn. अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करें, यू विल गेट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन vn स्क्वायर. और ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है विच इज v डॉट v स्क्वायर रूट. ठीक है. एंड नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, अगर बोथ साइड का स्क्वायर ले लें, देन इट इज इक्वल्स v डॉट v. लेट v इक्वल्स दिस वन. फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u. अब आप क्या करेंगे?
सबसे पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालेंगे या लीनियर अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी में नॉर्म निकालेंगे। वी नॉर्म जो होता है ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वी डॉट वी है। तो वी डॉट वी पहले आप निकालेंगे। वी डॉट वी निकालने के लिए आपके पास ये वेक्टर वी दिया गया है 1 -2 2 एंड 0 और इसको इसी वेक्टर कॉलम वेक्टर से 1 -2 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 1 +4 +4 +0 विच इज 9। अब आपने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v निकालना है। तो v की जो डायरेक्शन है v को v की नॉर्म से जो है डिवाइड कर लें, दैट विल बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। सो 1/9 1 -2 2 0. This is the unit vector. It can be written also in a column matrix 1 -2 2 and 0. It's the same thing. ठीक है? Next example is let W be the subspace of R2 spanned by x equals 2 3 1. Find a unit vector Z that is a basis for W. W जो है W आपकी ऐसी सबस्पेस है R की जो कि स्पैन है किसकी, द वेक्टर 2/3 और 1। और हमें पता है, हमने सीखा हुआ है कि स्पैन किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स का सबस्पेस होती है फ्रॉम वेयर दीज वेक्टर्स आर टेकन। ठीक है, तो ये सबस्पेस है। अब इसकी बेसिस अगर हमने निकालनी हो भी तो हमारे पास एक ही वेक्टर है, स्पैन पहले ही कर रहा है, वन वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो दिस इज द बेसिस। सो द डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स 1। ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल में रिकॉल करवा देता हूँ। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है एक यूनिट वेक्टर निकालें दैट इज अ बेसिस फॉर W। इसका मतलब है ये वाली बेसिस में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है ऐसी बेसिस में जो कि यूनिट वेक्टर हो। तो अगर मैं इस वेक्टर को u कहूं तो मैं u का नॉर्म जो है वो निकालूंगा विच इज डिफाइंड एज u डॉट u विच इज 4/9 + 1 स्क्वायर रूट विच इज 9 + 4 that will be 13 divided by 9 square root complete पे that will be square 13 3. So a unit vector in the direction of this vector will be unit vector अगर मैं लिखना चाहूँ that will be the magnitude square root of 13 divided by 3 1 over this one into 2/3 and 1. So that will become 3/13 2/3 1. ठीक है, so this is the unit vector and new basis B1 which consists of this vector that is 2 over square root of 13 and 3 over square root of 13. A basis consisting of this vector is the required basis as in this example. This vector is a unit vector and spans W as well as one vector सिर्फ है linearly non-zero vector है तो linearly independent भी है. So this form a basis for the W which is the subspace of dimension 1 of R2. अब इसकी ज्योमेट्री भी डिस्कस कर लेते हैं. ज्योमेट्री ये एक लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब Rn में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है. लेंथ ऑफ द वेक्टर भी जो है ये भी पॉजिटिव नंबर होता है. फॉर u एंड v इन Rn the distance between u and v written as distance uv is the length of the vector u minus v. कोई से भी दो पॉइंट्स हैं आपके स्पेस में, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इनफैक्ट
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस दिस पॉइंट पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता है, ये डिस्टेंस d होता है, DIS डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। u इस पॉइंट का यूनिट वेक्टर है और v इस पॉइंट का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये नॉर्म जो है ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, u माइनस वी डॉट u माइनस वी स्क्वायर रूट, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। एग्जाम्पल है, कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। सो u माइनस वी नॉर्म that will be equals -1 square plus -1 plus 2 square plus 2 minus 2 square and 1 minus 0 square. So this is the distance between u and v, which is in fact 1 square root of 1 plus 1 plus 0 and plus 1, which is square root of 3. ठीक है? This figure shows the same thing but geometrically. We have v here, we have u here, and this is minus v. Direction is reverse. So u minus v is this one, u minus v is this one, and here it is the magnitude of this vector, which is u minus v. ठीक है जी। Example, compute the distance between the vectors. ये वेक्टर जो है ये R3 में से है, ये वेक्टर जो है ये R3 में से। अब आप नोटिस करें कि वेक्टर्स को हम u1, u2, u3 भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन u एंड v इक्वल्स u माइनस v डॉट u माइनस v स्क्वायर रूट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब u माइनस v क्या होगा, u1 माइनस v1, u2 माइनस v2, u3 माइनस v3। ये आपका u माइनस v बन गया। अब बाय डेफिनेशन u माइनस v डॉट u माइनस v ये क्या बन गया, that will be equals u1 minus v1, u2 minus v2, u3 minus v3, and this column vector, which is u1 minus v1, u2 minus v2 and u3 minus v3। इन दोनों का प्रोडक्ट लें और स्क्वायर रूट में डाल दें, इट विल बी u1 minus v1 square plus u2 minus v2 square plus u3 minus v3 square and all square root. So this is the formula of the distance in R3. In fact, we can write down the formula for the distance for the two vectors in Rn. Rn के लिए suppose u and v belongs to Rn है, so distance between u and v will be u1 minus v1 square plus u2 minus v2 square plus so on un minus vn square. This is the distance formula between two vectors u and v in Rn। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ये भी आपको पहले से ही पता था। नाउ लेट्स डिफाइन द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर दैट एंगल बिटवीन देम इज 90 एंगल वाले वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। अब ये एक रिजल्ट हम निकाल रहे हैं
कि टू वेक्टर्स u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इक्वल 0. u एंड v आर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ये, ठीक है. और ये ज्योमेट्रिकली यहाँ से दिखाया गया है. इसका प्रूफ जो है ये ज्योमेट्रिक प्रूफ है इसका, ठीक है. ये इनफैक्ट हम कर क्या रहे हैं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं बिटवीन इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स u and v is 90, then I am calculating the distance between u and v, which is norm of u minus v. और नॉर्म जो है ये किस तरह डिफाइन की जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस वी डॉट u माइनस वी, ठीक है, इस तरह डिफाइन की जाती है. और दूसरी बात मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, आई विल कैलकुलेट फर्स्ट आई विल कैलकुलेट दिस वन, सेकेंड आई विल कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन u एंड माइनस वी. अब माइनस वी वेक्टर डिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर मैं डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर दूं बिटवीन टू पॉइंट्स देन डिस्टेंस शुड रिमेन द सेम, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को तो इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन डिस्टेंस जो है वो तो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है. सो डिस्टेंस बिटवीन u एंड माइनस वी विल बी u माइनस वी, क्योंकि वेक्टर हमारा अब क्या है, माइनस वी है. The norm of u minus v, which is square root of u minus v dot u minus v. ये जो है ये आपका स्क्वायर रूट. अब ये वेक्टर्स क्या है, इनफैक्ट ये u प्लस v है डॉट u प्लस v है. अब डिस्टेंस अपेरेंटली should be same, distance 1 from equation 1 and 2, distance of uv should be equals between the distance of u minus v. इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे you will see that, और ये you have to do it, you will see that 2u dot v equals माइनस 2u डॉट वी. ये डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट जो हम दिखा रहे हैं वो है. तो दिस इक्वेशन विल लीड टू फॉर u डॉट वी इक्वल 0. 4 तो 0 नहीं हो सकता, सो व्हाट विल बी 0, u डॉट वी इक्वल 0. सो इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, then these distances from u to v, it's the same as this one, because these are the right angle, this is the same angle, and these triangles are similar triangles. ये triangles, एक ये triangle जो बन रही है और एक ये triangle जो बन रही है, these are similar triangles. So these should have the same distance, this one. और ये हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन से भी पता चल रहा है कि ये मैग्नीट्यूड है, इट शुड हैव द सेम वैल्यू, और सिमिलर ट्रायंगल से भी पता चल रहा है इस ज्योमेट्री से. सो हम इन डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट्स जो हैं इनको कैलकुलेट किया, एंड दिस विल बोथ साइड्स का स्क्वायर हमने ले लिया, और u डॉट u हमारे पास आएगा इस एक्सप्रेशन में, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वन. इनफैक्ट इजी है ये, इसको इवेल्युएट करें, इसको इवेल्युएट करें डॉट प्रोडक्ट को, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करें, दैट विल लीड टू दिस वन. ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एंड दैट विल लीड टू दिस इक्वेशन 4 कैन नॉट बी इक्वल 0. इट मीन्स u डॉट v शुड बी इक्वल 0 whenever the vectors are perpendicular. So this is the if and only if condition that the two non-zero vectors are orthogonal or perpendicular. Perpendicular आपको पता था, लेकिन orthogonal भी हम कहते हैं. Orthogonal जो है ये टर्मिनोलॉजी है लीनियर अलजेब्रा की. If u डॉट v इक्वल 0 है,
अब similarly we have a result. Two vectors u and v are orthogonal if and only if the magnitude of u plus v equals the magnitude of u square plus magnitude of v square. और ये भी ज्योमेट्रिकली हम देख सकते हैं. This is the origin, this is v and this is magnitude of u plus v, this is magnitude of v and this is the resultant u plus v. In fact ये आपके पास वेक्टर u है, ये आपके पास v है, तो इसके पैरेलल ये वेक्टर v है. हेड टू टेल मेथड से ये आपका रिजल्टेंट बन गया और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? टू वेक्टर्स. ये अगर परपेंडिकुलर 90 का एंगल है तो ये भी 90 का एंगल होना चाहिए. तो ये बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर्स should be equals the square of the sum of the u plus v which is the resultant vector. और ये पाइथागोरस थ्योरम जो है एग्जैक्टली उससे रिलेटेड है. ये आपका u plus v जो है ये हाइपोटेनस बंद है, बेस आपके पास ये है, परपेंडिकुलर आपके पास ये है, तो स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस, लेंथ की बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर नॉर्म इक्वल्स द नॉर्म ऑफ और द लेंथ ऑफ द वेक्टर u प्लस v. नॉर्म जो है ये लेंथ ही होती है. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड है कि वी आर गोइंग टू डिफाइन द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट्स. If a vector z is orthogonal to every vector in a subspace W of Rn. ये आपके पास Rn है, ये इसकी कोई W यहाँ पे पड़ा है, सबस्पेस है. अब ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऐसा इसका सेट है जो कि X बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, जिसको हम W ये परपेंडिकुलर से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कोई से भी एलिमेंट है ना, W1, W2, जितने भी एलिमेंट्स हैं, X तमाम पे ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो. व्हाट डज इट मीन कि X डॉट WI बिलोंग्स टू W शुड बी इक्वल 0. ठीक है. इसी तरह ही डिफाइन किया गया है. If a vector z is orthogonal to every vector for all W belongs to W, u dot W equals 0 implies u belongs to W complement, and we read it as W perpendicular. U belongs to W perpendicular. Then z is said to be orthogonal to W. The set of all vectors z such that are orthogonal to W is called the orthogonal complement of W and is denoted by this one. अब orthogonal complement जो है ये बड़ी अच्छी तरह आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास कोई सी वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की कोई सब स्पेस है, उस सब स्पेस पे ऐसी कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स जो कि उस सब स्पेस के हर वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे एक सेट में एंड वी कॉल दैट ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट. ठीक है. ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे. We have an example. Let W be a plane through the origin in R3 and let L be the line through the origin and perpendicular to W. अब कैलकुलस की लैंग्वेज में ये L को जो है, L क्या है? ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के. ठीक है. If Z and W are non-zero, Z is on L, Z यहाँ पे ये फिगर में ये दिखाया गया है, and W is in W. W जो है वो प्लेन है ये. अब W उसी प्लेन पे अगर है तो वो दैट इज ये वेक्टर ओरिजिन से बनाएगा. एंड दिस वेक्टर एंड द वेक्टर विच correspond to the point Z lying on the line, these are orthogonal to each other. ठीक है. ये यहाँ पे बताया गया. एंड W is in W, then the line segment
from 0 to z is perpendicular to the line segment from 0 to w, that is z dot w equals 0. अब ये लाइन सेगमेंट दोनों 90 का एंगल परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल हुए. सो ईच वेक्टर ऑन L, इसी तरह हाउ मेनी वेक्टर्स वी हैव ऑन L, देयर आर इन्फिनिट मेनी वेक्टर्स. इधर है, ये है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन सेम रहेगी, ऑपोजिट भी हो सकती है. सो ईच वेक्टर ऑन द लाइन L इज ऑर्थोगोनल टू एवरी W in capital W. In fact, L consists of all vectors that are orthogonal to W's, and W consists of all vectors orthogonal to Z's. अब ये डिफरेंट पॉइंट्स के कोरस्पॉन्ड, आपके पास लाइन पे भी डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, प्लेन में भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे. दैट इज L इक्वल्स, ये यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में है, द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W. W orthogonal complement of W. L is the orthogonal complement of W and W is the orthogonal complement of L. So in this example, the both sets are orthogonal complements of each other. Orthogonal complements satisfies very important properties which are written here. The first one, a vector X is in orthogonal complement of W if and only if X is orthogonal to every vector in a set that spans W. इसका मतलब है W अगर सबस्पेस है, W will be the spanning set of some vectors of W. Let's say W1, W2 up to WP. अब X जो है ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में होगा, X बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W. इट मींस कि X डॉट W शुड बी इक्वल 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W. ये सेटिस्फाई करना चाहिए. अब हमने बेसिस पढ़ी हुई है. बेसिस ऐसा सेट होता है जो कि स्पैन भी करे स्पेस को और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो. अब अगर बेसिस हम किस तरह चेक करेंगे, ये बड़ा मुश्किल टास्क है कि इन्फिनिट अगर आपके W में एलिमेंट्स हैं तो आपको कोई वेक्टर एक दिया गया हो तो आपने ये चेक करना हो कि ये वेक्टर ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W में है कि नहीं है. आप इन्फिनिट टाइम्स डॉट प्रोडक्ट तो नहीं यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है कि एक गिवन वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W में होगा अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर with all the vectors of W equal 0. अब अगर W में infinite vectors हैं तो आप किस तरह चेक करेंगे? Of course we will use our previous knowledge which says that अगर W सबस्पेस है तो इसकी कोई ना कोई बेसिस भी होनी चाहिए. बेसिस होगी तो हमें we will be able to find out some vectors which in fact spans the whole W. What does it mean? ये आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आनी चाहिए इस टर्मिनोलॉजी को कि ऐसे वेक्टर्स हमें मिलने चाहिए जिनका लीनियर कॉम्बिनेशंस हम लें, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस को कलेक्ट करें तो वो W के इक्वल आ जाए. अब अगर X जो है वो जिन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस या स्पैन ऑफ द वेक्टर्स इक्वल्स W है, उन तमाम वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे भी परपेंडिकुलर ही होगा ना. ठीक है ना. तो वी विल ओनली चेक कि W को स्पैन कौन कौन से वेक्टर कर रहे हैं. उन तमाम वेक्टर्स पे हम सिर्फ चेक करेंगे कि आपका जो है X जो है जो कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में जाने का एक कैंडिडेट है वो तमाम पे परपेंडिकुलर है कि नहीं. अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W में चला जाएगा. सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है X बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W, ये तो डेफिनेशन थी ना, और अगर इन्फिनिट एलिमेंट्स हो W के तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब. हमने बेसिस पढ़ी हुई थी ऐसे वेक्टर्स जो स्पैन करे. अब मैं क्या करूंगा, XW1 चेक करूंगा, वो अगर 0 आए, XW2 चेक करूंगा, वो भी अगर 0 आए, सो एंड सो फोर्थ. X डॉट WP चेक करूंगा, सब 0 आए, देन I will conclude that X belongs to orthogonal complement of W.
ठीक है. सो फाइनाइट सेट विच स्पैन्स द स्पेस W, उसके हर वेक्टर पे अगर x जो है, कोई भी वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल है, तो वो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W में चला जाएगा. W इज अ सबस्पेस ऑफ Rn. ये तो था ही नहीं, यहाँ पे कंप्लीमेंट भी है. द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W इज अ सबस्पेस ऑफ Rn. ये भी आप इजीली चेक कर सकते हैं. इनफैक्ट इट्स अ वेरी interesting exercise for you to show that orthogonal complement of W is a subspace of Rn whenever W is a subspace of Rn. ठीक है, ये आपने you have to do it yourself. Next result डिस्कस करते हैं. Let A be an M cross N matrix. The orthogonal complement of the row space of A is the null space of A, and the orthogonal complement of the column space of A is the null space of A transpose. अब A कोई भी मैट्रिक्स हो, रिकॉल करें कि हमने नल स्पेस ऑफ A ये डिफाइन की थी, विच इज द सोल्यूशन ऑफ AX इक्वल 0. कॉलम स्पेस ऑफ A डिफाइन की थी, विच इज द स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ A1, A2 अप टू सो ऑन AN. A का ऑर्डर M इंटू N है, तो ये स्पैन जो है, इसको हम कॉलम स्पेस ऑफ A कहते हैं. अब ये दोनों भी तो स्पेसिस ही है ना. We can talk about the orthogonal complement of these spaces. So ये कह रहा है कि रो स्पेस भी इसी तरह हमने की थी कि रो स्पेस ऑफ A स्पैन ऑफ रोज ऑफ RM रोज ऑफ A. ठीक है, ये तो डेफिनेशन मैंने आपको रिकॉल करा दी. अब रो स्पेस ऑफ A का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, जो कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट वो नल स्पेस ऑफ A होती है, और कॉलम स्पेस का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ये नल स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज होती है. ठीक है, और ये फॉर्मली प्रूफ भी किया जा सकता है. इनको ये स्टेटमेंट्स जो हैं, इन सबको प्रूफ किया जा सकता है फॉर्मली, मैथमेटिकली रिगोरस वे से जो है प्रूफ किया जा सकता है. ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट दिस मैट्रिक्स A1 2 1 0 5 7 1 3 5. ये एक मैट्रिक्स 3x3 मैंने लिख दिया. अब अगर आपने ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट रो ऑफ A का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट लिखना हो, तो आप इसका क्या सॉल्व करेंगे? AX इक्वल 0 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगर आपने ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A करना हो, तो आप क्या करेंगे? यू विल कंसिडर A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 1 0 5 7 1 3 5, और इसको ATX इक्वल 0 इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ कॉलम ऑफ A. ये किसके लिए था? ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ रो स्पेस ऑफ A. कॉलम स्पेस ऑफ A के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे. और ये दोनों क्या है? होमोजीनियस सिस्टम है. होमोजीनियस सिस्टम्स को सॉल्व करना हमने बहुत अच्छी तरह सीखा हुआ. Let's go to the next concept, orthogonal sets. A set of vectors u1 so on and so forth up in Rn is said to be an orthogonal set if each pair of distinct vectors from the set is orthogonal. That is, the dot product of ui and uj equals 0 whenever I is not equal to j. ठीक है, अब show that this set is an orthogonal set. तो हमें क्या करना पड़ेगा? If we have to show that this set is orthogonal set, it means that I have to show that u dot
u2 इक्वल्स 0, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा. u1 डॉट u3 ये कैलकुलेट करूंगा. देन u2 डॉट u3 इक्वल्स इसको कैलकुलेट करूंगा. इफ ऑल थ्री डॉट प्रोडक्ट्स आर 0, और कोई प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, लेट्स से u3 डॉट u1 जो कि इक्वल होता है u1 डॉट u3 के, और ये हमने पहले ही कर लिया हुआ है. लेट्स से u2 डॉट u3 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो u3 डॉट u2 ये भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट जो है या इनर प्रोडक्ट जो है जो सेटिस्फाई करता है. सो वी ओनली हैव टू चेक दीज थ्री डॉट प्रोडक्ट्स. बाय डेफिनेशन u1 ट्रांसपोज इंटू u1 ट्रांसपोज क्या बनता है 3 1 1 into the column vectors -1 2 1. अब इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, -3 +2 +1 which is equal 0. Similarly u1 डॉट u3 जो है वो क्या आएगा 1/2 -4 +7/2. अब इसको जो है आप कैलकुलेट करें, दैट विल बी 1/2, 2 एलसीएम आएगा 1 -8 +7, that will be 0 divided by 2 equals 0. Similarly you can check that u2 dot u3 सॉरी मैंने ये u2 डॉट u3 जो है यहाँ पे ये कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, ये भी 0 है. अब u1 डॉट u3 अगर आपने करना हो तो बाय डेफिनेशन इट विल बी u1 3 1 1 मल्टीप्लीकेशन बाय u3 -1/2 -2 एंड 7/2. It will be equals minus, that will be a real number, -3/2 -2 plus 7/2. LCM आप लें 2 -3 -4 plus 7 equals 0/2 equals 0. So every vector is perpendicular to the other vectors of this set. Hence this set is an orthogonal set. अब ऑर्थोगोनल सेट्स जो है ना ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज इनकी हैं लीनियर अलजेब्रा में. व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? ऑर्थोगोनल सेट्स अगर होंगे तो आप ये देखेंगे कि ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा. क्या मतलब है कि C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3 इक्वल 0. इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो कि वेक्टर इक्वेशन है, ओनली सॉल्यूशन C1 इक्वल्स C2 इक्वल्स C3 इक्वल्स 0 है. इफ द सेट इज ऑर्थोगोनल सेट मींस दैट एवरी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू द रिमेनिंग वेक्टर्स. अब इसको चेक भी किया जा सकता है. अब हम किस तरह, अब हम सिस्टम सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सपोज C1 मैंने निकालना है तो आई विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस कंप्लीट बोथ साइड्स ऑफ दिस वेक्टर इक्वेशन बाय लेट्स से C3 U3 डॉट प्रोडक्ट ऑफ U3 0 डॉट U3. अब नल वेक्टर से कोई भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो नल वेक्टर ही आएगा. अब ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करके आई कैन राइट दैट C1 U1 डॉट U3 प्लस C2 U2 डॉट U3 प्लस C3 U3 डॉट U3. दिस इक्वेशन गिव्स, अब U1 डॉट U3 ये 0 होगा, U2 डॉट U3 ये भी 0 होगा. सो आई एम हैविंग 0 प्लस 0 प्लस C3 इंटू U3 डॉट U3 जो के रिकॉल करें कि नॉर्म ऑफ अ वेक्टर V इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ V डॉट V.
तो नॉर्म का स्क्वायर जो होगा वो v डॉट v होगा. सो इट मीन्स C3 इंटू द नॉर्म स्क्वायर ऑफ U3 इक्वल्स 0. अब ये तो एक U3 जो है नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये कभी जीरो हो सकता है? नॉर्म लेंथ किसी वेक्टर की, नॉन जीरो वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर जो है वो जीरो हो सकता है कभी? नो, कभी नहीं ये जीरो हो सकता. U3 नॉर्म स्क्वायर ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, विच इंप्लाइज दैट C3 इक्वल 0. सिमिलरली इस इक्वेशन का अगर मैं U2 से डॉट ले लूं, सो आई कैन शो दैट C2 इक्वल 0. दिस विल लीड टू C2 इक्वल 0. अगर इस वेक्टर इक्वेशन का U1 से डॉट मैं ले लूं तो C1 इक्वल 0 मैं शो कर सकता हूं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ द सेट ऑफ वेक्टर्स इज ऑर्थोगोनल देन इट इज ऑटोमेटिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट. इस एग्जांपल के लिए हमने चेक कर लिया. नेक्स्ट रिजल्ट जो है ये स्टेट कर रहा है. लेट्स गो टू द रिजल्ट. इफ S U1 U2 so on and so forth UP is an orthogonal set of non-zero vectors. Non-zero vectors is very important properties, क्या very important condition है, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर किसी सेट में आ जाए वो हमें पता है कि we don't need to do anything, that set will be linearly dependent in Rn. Then S is linearly independent and hence is a basis of the subspace spanned by the S. अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा तो वो बेसिस होगा उस स्पेस का जो कि उसका स्पैनिंग स्पेस के इक्वल है. ऑर्थोगोनल बेसिस कोई सी वेक्टर स्पेस है W सबस्पेस Rn, ऐसी बेसिस जिसके वेक्टर्स जो है ऑर्थोगोनल हो वी कॉल दैट बेसिस ऑर्थोगोनल बेसिस. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बेसिस जो है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स उसके हों, ऑर्थोगोनल बेसिस हो. ऑर्थोगोनल बेसिस एक खास किस्म की बेसिस हुआ करेगी. थ्योरम है, रिजल्ट है, इफ U1 so on and so forth UP be an orthogonal basis for a subspace W of Rn for each y belongs to W, the weights in the linear combination, this is the linear combination, are given by Cj equals y dot uj over uj dot uj. ये इनफैक्ट बड़ा इजी है और हमने अभी देखा भी था. अगर बेसिस होगा तो हर वेक्टर ऑफ W कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द बेसिस, ये हमें पता है. अब ये कांस्टेंट निकालने हैं. कांस्टेंट इस वेक्टर इक्वेशन का ये ऑर्थोगोनल बेसिस है. U1 से डॉट ले लें दोनों साइड्स का, ये क्या बन जाएगा C1 U1 डॉट U1 प्लस C2 U1 डॉट U2 प्लस सो ऑन CP UP डॉट U1. अब ये ऑर्थोगोनल है तो ये भी जीरो हो जाएगा, बाकी तमाम दरमियान वाली टर्म्स भी जीरो और ये भी जीरो. सो वी विल बी लेफ्ट विद C1 U1 dot U1 and ultimately we will have C1 equals y dot U1 divided by U1 dot U1. ठीक है, ये C1 की वैल्यू आ गई. सिमिलरली C2 की वैल्यू क्या आएगी, y dot U2 U2 dot U2, so on and so forth. So this will be the general formula Cj where y dot uj over divided by uj dot uj, which is the inner product in the terms of linear algebra. The set S set जो है U1 U2 U3 is an orthogonal basis for R3 where U1 U2 U3 is given this one. ठीक है, और ये हमने पिछली एग्जांपल में यही वेक्टर्स थे, हमने ऑर्थोगोनल शो किए हुए हैं बाय टेकिंग U डॉट U2 इक्वल 0 एंड U1 डॉट U3 इक्वल 0 एंड U2 डॉट U3 इक्वल 0. ये हमने किया था लास्ट एग्जांपल में. ठीक है, एक्सप्रेस y एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S. इसका मतलब है y इक्वल्स C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3.
इस तरह हमने एक्सप्रेस करना है. वी हैव टू फाइंड आउट C1, C2, C3. आज से पहले लेक्चर्स में हम ये किस तरह ऑब्टेन करते थे, हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लेट मी रिकॉल यू, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बनता था 3 1 1 -1 2 1 -1/2 -2 7/2 एंड y 6 1 -8. इस सिस्टम को सॉल्व करते थे. अब हमने एक और टेक्निक सीख ली है. वो टेक्निक क्या है कि वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कि ये ऑर्थोगोनल बेसिस है. S जो है ऑर्थोगोनल बेसिस है R3 की. सो C1 विल बी y into डॉट U1 ओवर U1 डॉट U1. इसका मतलब मुझे y डॉट U1 निकालना पड़ेगा जो कि क्या है, y डॉट U1 18 प्लस 1 माइनस 8, दैट विल बी 11. अब U1 डॉट U1 ये क्या होगा, U1 का अपने आप से डॉट 9 जो कि मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है. 9 प्लस 1 दैट इज 11. ठीक है. सो C1 विल बिकम 11 over 11 equals 1. So this is the another way and easy way. So C2 will be y dot U2 over U2 dot U2. तो U2 dot U2 जो है वो 1 plus 4 plus 1 ये 6 बन जाएगा, और y dot U2 जो है ये -6 plus 2 minus 8 ये क्या बन जाएगा, -12. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ C2 इज -12 डिवाइडेड बाय 6 विच इज C2 इक्वल्स -2. ठीक है. अब आपका C3 जो है दैट विल बी, C3 U3 के साथ है, y डॉट U3 divided by U3 dot U3 and your C3 will be y dot U3 जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. y dot U3 will be -3 -2 and -4 into 7 which is -5 -28, and that will become 28 minus sign with -5, that will be -33. And we need U3 dot U3 which is 1/4 plus 4 plus 49/4, and by taking LCM 4, 1 plus 49, 50, 66, that will be 66. So C3 will be y dot U3 which is -33 divided by 66, and C3 equals -1/2. So these are the values which we used or find out by using the concept of orthogonality of the bases S. इसी तरह आप जो है orthogonality से linear combination if the basis is given as orthogonal basis, तो आप जो है easily calculate कर सकते हैं. We are almost at the end of our lecture, और next slide पे देखते हैं an orthogonal projection. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये इनफैक्ट आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. एज यूजुअल एट द एंड ऑफ माय लेक्चर आई विल प्रोवाइड सम ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे. इनफैक्ट हमारे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वो बेस करेंगे. दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन अ हरी कि मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता दूं, एक्सप्लेन अच्छी तरह ना करूं. सो आई विल कंसिडर दिस एज in the next lecture,
एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो उस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सम ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आर हेयर. डिटरमिन विच सेट ऑफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. कौन कौन से सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल हैं. S1 आपको ये दिया गया है और ये दो डिफरेंट सेट हैं. S2 इक्वल्स दिस वन. ये दो सेट्स को आपने ऑर्थोगोनल चेक करना है. सपोज दिस वन इज U, this one is V, this one is W. So you will check that U dot V क्या बनता है, U dot W क्या आता है एंड V dot W क्या आता है. अगर इन तीनों में से एक भी डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट जो लीनियर अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी है, इनर प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो आ जाता है, we will stop there. ठीक है. The set is not orthogonal vectors. सेट के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स नहीं है. इसीलिए इसी तरह आप जो है ये एग्जांपल जो है S2 के लिए करेंगे. ये क्वेश्चन जो मैंने डाला हुआ है ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का है. ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आई हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 लेक्चर जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस जो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एंड आई डोंट हैव टू मच टाइम टू एक्सप्लेन द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इन दिस लेक्चर. Next question is, suppose W is the subspace of Rn spanned by n non-zero orthogonal vectors. Explain why W equals Rn. ये conceptual question है, you have to do it yourself. और इसको आप invertible matrix theorem या इस तरह का results जो है वो use करके और orthogonal vectors पे consist करता है तो वो linearly independent हो जाएगा. ठीक है. The next question is, let U be a square matrix with orthonormal columns. Explain why U is invertible. और ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स जो हैं ये भी मैं कॉन्सेप्ट जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डज इट मीन. और नेक्स्ट क्वेश्चन भी. टिल देन वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर. आपको जो आज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है विच इज़ द इनर प्रोडक्ट, और ये आज के लेक्चर में कोई इनफैक्ट नई बात नहीं थी, सिर्फ एक ही नई बात हमने सीखी है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो है हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होता है. ठीक है. और वी हैव लर्नड कि इफ वी आर गिवन द ऑर्थोगोनल बेसिस. ऑर्थोगोनल बेसिस कौन सी बेसिस होती है? ऐसी बेसिस जिसके वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म करें, यानी कि वो एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल हो. ऑर्थोगोनल बेसिस अगर हमें दी गई हो देन वी कैन राइट डाउन द लीनियर कॉम्बिनेशन of any vector from the subspace which has been obtained by the spanning of that basis, the vectors of that basis. उसका वेक्टर जो है उसके unknown C1, C2, C3, C4, C5, so on and so forth, इनको हमने एक नए वे से by using the properties of orthogonality of two vectors or orthogonality of a set ऑफ वेक्टर्स, उसको यूज करके हमने अननोन्स जो है डिटरमिन किए हैं. बिफोर दैट वी यूज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशंस जो है वो होल्ड करे. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है इनफैक्ट वो कॉन्सेप्ट आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि कोई भी वेक्टर आपको दिया गया होगा, we want to decompose that vector into two components of that vector. The one component is along that vector and the other component is perpendicular to that vector. और ये अगर आपने physics पढ़ी होगी, so this concept is also you are already familiar with that concept. और इस concept को जो है आपने physics में ज़रूर पढ़ा होगा जिन लोगों ने physics पढ़ी है. ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस एंड सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम स्टडी करेंगे इन द लीनियर अलजेब्रा. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.